Good morning, students. Today, the topic of discussion is Bohr's model of hydrogen atom. So, this is a very important topic and very interesting topic. So, we will discuss the following points under the topic Bohr's model of hydrogen atom. Actually, when the this model of hydrogen atom was given by Bohr, he assumed some assumptions and the which are known as postulates. So postulates of Bohr's model of hydrogen atom, that was the first point to be discussed today. And the second point to be discussed today is calculation of Bohr's radius for hydrogen atom. Third one is calculation of total energy of electron for nth orbit in hydrogen orbit atom. Fourth one is speed of electron in nth orbit of hydrogen atom. And fifth one is energy levels of hydrogen atom. And sixth one is limitations of Bohr's atomic model. So we will discuss today one by one under the topic Bohr's model of hydrogen atom. So first point to be discussed is postulates of Bohr's model of hydrogen atom. तो क्या क्या पॉस्टुलेट्स जो है वो बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए उसने कुछ पॉस्टुलेट्स सजेस्ट किए थे. एंड व्हाट आर दीज पॉस्टुलेट्स रिगार्डिंग द बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो फर्स्ट पॉस्टुलेट्स वाज द न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट. फर्स्ट वाज नोन एज न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट. So this was the nuclear concept. So what is this nuclear concept? Actually, an atom has a small nucleus at its center. Everybody knows that matter is made up of atoms, and atom is having at its center a small nucleus, and electrons are revolving around the nucleus. Then what happens? The centripetal force required for the rotation of the electrons is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus. So first concept which was given, or first postulates which was taken into consideration by Bohr regarding the Bohr's model of hydrogen atom was nuclear concept. और इसने यही बताया कि जो एटम इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स में क्या होता है कि एटम्स के सेंटर में जो है वो ये न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. तो अगर इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं तो इस रिवॉल्यूशन के लिए सबसे पहली कंडीशन हम जानते हैं कि रिवॉल्यूशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है that is responsible for the revolution of the electron. So this centripetal force required for the rotation of the electron is provided by the force of attraction between the electron and the nucleus, because nucleus is having positively charged, electron is having negative charge, so there is a force of attraction between nucleus and the electron. So this electrostatic force gives or is responsible for the centripetal force for the revolution of the electron around the nucleus. So first was the nuclear concept. An atom has a small nucleus at its center and electrons are revolving around the nucleus. The centripetal force required for the rotation of electrons is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus. And the second point was the quantum condition. Second postulate was the quantum condition. So of all possible circular orbits allowed by the classical theory, जो classical theory दी गई थी उसमें क्या था कि of all possible circular orbits allowed for the classical theory, the electrons are permitted to circulate only in those orbits in which the angular momentum of an electron is in the integral multiple of h over 2 pi.
यानी जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, वो उनको परमिशन, उन इलेक्ट्रॉन्स को परमिशन जो रिवॉल्व करने की या सर्कुलेट करने की परमिशन मिलती है वो सिर्फ जो है वो उन्हीं ऑर्बिट्स में मिलती है जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होता है किसके, h/2π के, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। देयरफॉर फॉर एनी परमिटेड ऑर्बिट्स L is equal to mvr is equal to nh/2π, where n is equal to 1, 2, 3 and n is the principal quantum number. Of all possible circular orbits allowed by the classical theory, the electrons are permitted to circulate only, ये बोहर्स ने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस भी ऑर्बिट में सर्कुलेट करता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उस इलेक्ट्रॉन का किसके इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, किसके, h/2π के, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। So the second postulate was quantum condition. What it says, of all possible circular orbits allowed by classical theory, यानी किसी भी जितने भी पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स हो सकते थे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो परमिट किया जाता था रिवॉल्व करने के लिए और सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता था इलेक्ट्रॉन जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड सो फॉर एनी परमिटेड ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई L. Angular momentum is L, and angular momentum is defined as the moment of linear momentum. So linear momentum is mv, and movement, अगर linear momentum का movement निकालेंगे तो movement is equal to linear momentum into perpendicular distance r. So L is equal to mvr is equal to nh/2π, where n is equal to 1, 2, 3 and so on, and n is equal to principal quantum number. And the third postulate was stationary orbits. So next third postulate was the stationary orbits. अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए परमिसिबल ऑर्बिट्स मिल गई, कौन सी परमिसिबल ऑर्बिट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के, वही ऑर्बिट्स में खाली इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकता है। ये पॉस्टुलेट्स था सेकंड। थर्ड पॉस्टुलेट इसके बाद आया कि व्हाइल रिवॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट्स, जब इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट कर दिया सिर्फ परमिसिबल ऑर्बिट्स में ही, तो ये पॉस्टुलेट माना गया कि एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। तो जब वो परमिसिबल ऑर्बिट्स में जब रिवॉल्व करेगा तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, and these non-radiating orbits are called stationary orbits. So third postulates stationary orbits. So in this third postulates it was suggested by the Bohrs that while revolving in the permissible orbit an electron does not radiate energy, these non-radiating orbits are called stationary orbits. और जब ये डिसाइड हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ परमिसिबल ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करता है जिसका कि एंगुलर मोमेंटम n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है और बाकी की ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करता है, तो फिर ये हुआ कि ये रेडिएट कब करता है। अभी तो ये हो गया कि जिस परमिसिबल ऑर्बिट्स में यानी स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन कब करेगा ये फोर्थ पॉस्टुलेट में बताया गया, दैट इज फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और कौन सी कंडीशन होगी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट और फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। So now
according to the frequency condition, an atom can emit or absorb radiations in the form of discrete energy photons only. और इसमें ये बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल और फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, तो जो एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स एनर्जी ऑफ फोटोन्स. वो किस फॉर्म में होगा? दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ फोटोन्स ओनली. एंड if E1 and E2 are the energies associated with the permitted orbits, then the frequency nu of the emitted or absorbed radiation is given by h nu is equal to E2 minus E1. So according to fourth postulates, that is frequency condition, means frequency of addition of energy, frequency of emission of energy or absorption of energy. So now an atom can emit or absorb energy in the form of energy of photons only. यानी एनर्जी ऑफ फोटोन्स के फॉर्म में ही ये एमिट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है इलेक्ट्रॉन. ये फोर्थ पोस्टुलेट्स था. और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो ये एनर्जी एमिट करेगा और एंड फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. सपोज इफ E1 एंड E2 आर द एनर्जीज एसोसिएटेड विद द परमिटेड ऑर्बिट्स यानी जिसमें इसको परमिशन मिली हुई है रिवॉल्व करने की, यानी स्टेशनरी ऑर्बिट्स, तो उसकी अगर एनर्जी एक की E1 है एक की E2 है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड energy is given by h nu is equal to E2 minus E1, where nu is the frequency of the absorbed or emitted energy. So h nu is equal to E2 minus E1. So now the calculation of Bohr's radius. Second point is under the Bohr's model of hydrogen atom is calculation of Bohr's radius for hydrogen atom. यानी बोहर्स रेडियस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे फॉर द हाइड्रोजन एटम. सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, यानी अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है वो कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस विद ए पॉजिटिव चार्ज. तो यानी हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम हैज ए न्यूक्लियस विद ए पॉजिटिव चार्ज, यानी उसके हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. और पॉजिटिव चार्ज कैसे डिनोट करते हैं? Ze से, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ, सिंस द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, तो सिंस एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम इज 1, Z इज इक्वल टू 1. सो तो चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम हैज न्यूक्लियस विद, तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी 1 into E is equal to E. So this will be the charge of the nucleus of the hydrogen atom, and single electron of charge E revolves around the nucleus in a circular orbit of radius r. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसके ऊपर एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है, सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम. नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमारा E निकल के आ गया हाइड्रोजन एटम के ऊपर और न्यूक्लियस के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज E होता है. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E. तो हमारी दो चीज क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन एटम के केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E हो गया और हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज जो है वो सिंस Z इज इक्वल टू 1, सो उसके ऊपर भी चार्ज E हो गया. यानी न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज E है हाइड्रोजन एटम के, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो E होता ही है. नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, that will be equal to F is equal to
के ये कूलाम्स लॉ से दे सकते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पे Q1 Q2 क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस पे चार्ज E और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, सो दिस विल बी इक्वल टू के इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसको जनरल कर दें तो न्यूक्लियस को जेड ई कर सकते हैं, अगर इसको जनरल कर दें तो न्यूक्लियस का हो गया जेड ई, तो दिस विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नाउ टू कीप द इलेक्ट्रॉन इन, अब जैसे इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, द फोर्स which is responsible is the electrostatic force. So now therefore centripetal force Fc will be equal to Fe, then Fc or Fc is equal to mv square upon r. This is centripetal force, and Fe is equal to, as I have already calculated, k into z into e square upon r square and mv square upon r। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, इससे निकल के आ जाएगा हमारा mv square upon r इज इक्वल टू k z e square upon, सॉरी mv स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे इससे, r से r कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, we will get mv square is equal to kz e square upon r, and this will be the equation number 1. Now r is equal, इससे हम r की वैल्यू अगर निकालते हैं तो we will get r is equal to kz e square upon mv square. This is equation number 2. So now m is the mass of the electron, v is the velocity of the electron, and r is the radius of the orbit. नाउ बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, अब जो बोहर्स ने जो क्वांटाइजेशन की कंडीशन बताई थी एंगुलर मोमेंटम वाली, उसके अकॉर्डिंग L इज इक्वल टू mvr, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, दैट इज mvr, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। ये बोहर्स का पोस्टुलेट्स था, तो इसकी वजह से यहां से अगर हम r निकालेंगे, अगर हम यहां से r की वैल्यू निकालेंगे, then we will get r is equal to nh upon 2 pi into mv। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखिए कैसे निकलेगा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, अगर हम 2 और 3 को इक्वेशन को कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड भी इसका r है, इस लेफ्ट हैंड साइड इसका r, इसका भी r, तो जो लेफ्ट हैंड साइड अगर r रेडियस है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल, देन इसको बराबर कर दें फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, व्हाट वी विल गेट, दिस के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम। और इससे अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, v की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं then we will get so now the value of v will come out as v is equal to, v से v, इधर v से v कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक v रह जाएगा, and we will find out the value of v is equal to 2 pi k z e square upon nh. Now on putting the value of v from equation number 4 to equation number 3, यानी v की वैल्यू यहां पे अगर रख देते हैं तो हमको रेडियस ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट r निकल आएगी, तो r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, इसमें क्या है, h कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, z कांस्टेंट, e कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम्स, सो दिस इज कांस्टेंट। सो दिस इक्वेशन नंबर 5 क्लियरली इंडिकेट्स दैट r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी r जो है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है।
इसका मतलब रेडियस ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर. एन इज द नंबर ऑफ परमिटेड ऑर्बिट, द परमिटेड ऑर्बिट का नंबर, और जो है वो आर इज द रेडियस ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट. So now the radius of the permitted orbit increases in the ratio 1:4:9:16 as indicated by this r is proportional to n square. So now since r is proportional to n square, r means the permitted radius of the hydrogen permitted radius, and n is the permitted number of the permitted orbit. कौन सा नंबर है? सो द रेडियाई, दिस इक्वेशन शोज दैट द रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स इंक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ 1:4:9:16. अगर n की जगह 1 रखेंगे सो r इज प्रोपोर्शनल टू 1. इफ 2 रखेंगे तो r इज प्रोपोर्शनल टू 4. 3 रखेंगे तो r इज प्रोपोर्शनल टू 9. 4 रखेंगे तो r इज प्रोपोर्शनल टू 16. नाउ बोहर्स रेडियस. अब बोहर्स रेडियस, किस रेडियस को हमने बोहर्स रेडियस का नाम दिया? बोहर्स ने. So Bohr's radius, it is denoted by r naught. The radius of the innermost orbit of hydrogen atom, जो हाइड्रोजन एटम की जो इनरमोस्ट ऑर्बिट है उसका नाम दिया गया बोहर्स रेडियस, इज कॉल्ड बोहर्स रेडियस एंड कैन बी गिवन बाय. अब बोहर्स रेडियस को कैसे, अगर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोहर्स के लिए जो n इज इक्वल टू 1 हो गया, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट, एंड z इज इक्वल टू 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है. सो दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम. एंड अगर इसको n इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 को अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 में, देन वी गेट r नॉट इज इक्वल टू h²/4π² n/k⁴, एंड दैट द वैल्यू ऑफ बोहर्स रेडियस विल कम आउट एज 5.29 × 10⁻11 मीटर और 0.53 एंगस्ट्रॉम. Now the next point was to calculation of total energy of electron for nth orbit of hydrogen atom. अगर किसी हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें, टोटल एनर्जी, then total energy of electron for nth orbit of hydrogen atom can be given by En is equal to kinetic energy plus potential energy. And we know that kinetic energy is equal to half mv², potential energy is equal to k q1q2/r². So now half mv² we have already calculated the value of mv² at the back. So En is equal to half kZe²/r plus kZe into minus e. Here charge on the electron minus e divided by r. So En is equal to kZe²/2r minus kZe²/r. Now En is equal to kZe² minus kZe²/2r, and we know that value of r from the previous equation. R is equal to